A very warm welcome to you all students. We were discussing the chapter genetics and we had seen that Gregor Johann Mendel is considered as the father of genetics. Let's have a quick recapitulation about his life history, his working methods and his contribution in genetics. So, let's get started. So Gregor Johann Mendel was the first genetist, is also known as the father of genetics, and he was born on July 22 in 1822 in Silesian, a village in Hesendorf in Austria. In 1843, he joined Augustinian monastery at Brunn. In 1856, Mendel got interested in breeding of garden pea, Pisum sativum. So accordingly, he selected pure breeding varieties or the pure lines of pea. Breeding experiments were performed between 1859 and 1864. The results were read out in two meetings of Natural History Society of Brunn in 1865 and then published in 1866 in Proceedings of Brunn Natural History Society under the topic Experiments in Plant Hybridization. Mendel died in 1884 without getting any recognition during his lifetime. Then in 1900, Hugo de Ries of Holland, Karl Correns of Germany, and Erich von Schirmer of Austria came to the same findings as were got by Mendel. So this topic we had already discussed before, that whatever work Mendel did, unfortunately all those work remain hidden or remain undiscovered, or they failed to gain any popularity at that time, and so his contribution in genetics suffered a serious setback. But in 1900, three scientists rediscovered Mendel's work independently, and those scientists were Hugo de Ries of Holland, Karl Correns of Germany, and Erich von Schirmer of Austria. So all these three independently, fortunately it happened that all three of work were working on genetics, and whatever paper Mendel had published during his lifetime, all were rediscovered by them. And all his Hugo de Ries, basically he found the paper of Mendel and got it reprinted in Flora. The name of that publication paper was Flora in 1901. Okay, so and Correns, what he did was that he converted two of the generalization of Mendel into two laws of heredity. Like you can understand like this, like Mendel, whatever work he just did an experiment, and whatever result he got, he just published those results statistically in a paper, in his paper. Okay, and as I told you that these work of Mendel were not much accepted and approved by the scientists of those times, because he used first time a mathematical approach in biology, which was quite difficult to understand at that time, okay, by the scientists. Understood? So these three scientists, they independently, accidentally, they discovered the work while carrying out the work in the field of genetics, or related to DNA, whatever. They found out accidentally the papers of Mendel. So Hugo de Ries, what his contribution was, he got the work of Mendel reprinted in a paper, in a journal, and that was Flora, okay, in 1901. And Correns, what he did, whatever experiment, the two of the generalization means the inference, okay, the result which Mendel had gained during his experiments, by his experiments, those two generalization, he proved it, and then further he thought that he came to the conclusion that those two experimental results were of great importance, okay,
in the field of genetics. So what he did was he just converted those generalizations and gave them the name of laws of heredity, the two laws of heredity, which on the basis of the experiments which Mendel had earlier performed. Understood? So, and likewise Eric von Schermach also, he just went through all the publications and all the papers of Mendel, plus he also proved all those points which Mendel had worked earlier. And so that's why it is said that whatever lost whatever glory which Mendel had not been given were thanks to these three scientists, that his work was rediscovered. Okay, so this can be a question this question can be asked in your board examination also, and in your competition point of view also, that the name of the three scientists is very important. Okay, that who rediscovered Mendel's work. Okay, so Correns, what he did, he just converted his generalization of Mendel's into two laws, that is law of segregation and law of independent assortment, that we will be seeing. Okay, so this was basically, this is after this that Mendel got his recognition for his work. Okay, now if we consider the work of Mendel, so Mendel actually conducted artificial pollination or artificial hybridization process, or simply cross pollination experiments using several true breeding pea lines. True breeding line is one that, having undergone continuous self pollination, shows the stable trait inheritance and expression for several generations. ओके, सो ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब क्या हुआ कि कोई एक ऐसा प्लांट जिसको हमने कई जनरेशन हमने सेल्फ क्रॉस कराया हो, ताकि बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा जीन्स ना आए हो उस प्लांट में, वही जीन्स कंटिन्यूसली कई जनरेशन्स तक उसमें ट्रांसफ़र हो या इनहेरिट हो रही हो, ताकि वो पूरी जो मतलब प्योरिटी है उस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए। सपोज़ कि एक पी प्लांट है, उसमें वायलेट कलर के फ्लावर्स जो हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि उस वायलेट कलर के फ्लावर को प्योर लाइन का मतलब कि जब भी हम उस प्लांट को क्रॉस कराए तो हमको वायलेट कलर ही फ्लावर्स मिले। तो हम क्या करेंगे कि कई जनरेशन तक उसको सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे, सेल्फ क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होगा कि बाहर से चूँकि कोई भी एक्स्ट्रा जीन्स नहीं आ रहे हैं, सेम जीन्स है, तो क्या होगा कि उस कैरेक्टर के लिए, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर या उस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए वो चीज़ क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, जीन्स फिक्स हो जाएंगे, और तब हम उसको क्या बोलते हैं कि इट इज़ अ ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन प्लांट। ओके, दैट इज़ सेल्फ क्रॉस, सेल्फ पॉलिनेटिंग दैट पर्टिकुलर plant for a particular trait for several generations. So accordingly, Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties as pairs, which were similar except for one character with contrasting traits. इसका मतलब ये हुआ कि मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए जिनमें सारे कैरेक्टर्स एग्जैक्टली सेम थे, सिर्फ एक कैरेक्टर्स के, ठीक है। 14 प्लांट्स लिए जिसमें सारे कैरेक्टर्स सेम थे, ओनली वन कैरेक्टर वॉज डिफरेंट, और हर उस कैरेक्टर का एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है वो किसी ना किसी प्लांट में अवेलेबल था। सपोज 14 प्लांट्स आर देयर, सो 7 प्लांट्स वर हैविंग वन टाइप, ओके, एंड 7 प्लांट्स वर हैविंग जस्ट द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ दैट टाइप। अगर एक प्लांट था पी का जिसमें मान लो कि कई सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, हाइट, स्टेम का, या फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉट शेप, वट एवर कैरेक्टर, अ प्लांट कैन हैव सो मेनी कैरेक्टर्स, ठीक है। तो क्या उन्होंने कंसिडर किया, ऐसे प्लांट ब्रीड्स बनाए, ऐसे प्योर लाइन बनाए जिसमें सारे 99 कैरेक्टर्स सारे प्लांट में सेम थे, बस एक कैरेक्टर की वजह से वो सारे प्लांट्स आपस में डिफरेंट थे, ठीक है। और अगर हम उसको और स्पेसिफाई करें तो 14 प्लांट्स में से 7 प्लांट्स क्या थे, उनमें वो एक अदर 7 प्लांट्स के क्या थे, अल्टरनेटिव फॉर्म्स थे, ठीक है। इफ़ अ फ्लावर इज़ वायलेट इन कलर, तो जो दूसरा वाला होगा उसमें एक जो डिफरेंट कैरेक्टर क्या होगा कि फ्लावर का कलर कैसा होगा, वाइट कलर। अगर एक में पोजीशन फ्लावर की टर्मिनल है तो एक में क्या होगी, एक्सियल पोजीशन। एक में पॉट का जो शेप है वो अगर इन्फ्लेटेड है तो दूसरे में कैसा होगा, इट विल बी स्वॉलन, ठीक है।
अगर एक में सीड जो है वो येलो कलर की है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो दूसरे में सीड कैसे प्रोड्यूस होगी, ग्रीन कलर की। ठीक है, तो ऐसे लाइकवाइज की एक ही फॉर्म है, कैरेक्टर एक ही है, ट्रेट एक ही है, ठीक है, बट उसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। ठीक, तो ऐसे पी प्लांट्स को ही चूज। Then some of the contrasting traits selected were smooth or wrinkled seeds, yellow or green seeds, smooth or inflated pods, green or yellow pods, and tall or dwarf plants. And why the reason why Mendel chose those selected pea plants, there are many reasons. Number one is, like I told you, pure varieties were available at the of the pea. Okay, then pea plants are easy to cultivate. Life cycle of the plants are also for few months, so the result can be got early. Suppose there is a plant whose life cycle is for 2 years, that means we have to wait for 2 years, then again we have to conduct the experiment, and then again we have to wait for 2 years, and so on. But if a life cycle is of only few months, it's within a year, so many experiments can be conducted on them, isn't it? We can observe so many generations of that particular plant in 1 year. Also, the pea plant had two contrasting traits. Okay, contrasting traits means two alternative forms, like we had discussed about alleles, isn't it? Two alternative forms of a gene, so two alternative form of a character. Okay, then flowers are bisexual and normally self pollinated. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न वॉज कि जैसे पी प्लांट क्या है, वो कंप्लीट फ्लावर है, मीन्स इट इज़ हैविंग एंड्रोशियम ऑल्सो एंड गाइनेशियम ऑल्सो। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन की, क्रॉस पॉलिनेशन की जो टेंडेंसी थी वो भी थोड़ी कम थी, और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से हम उसका हाइब्रिड्स भी बना सकते थे। ठीक है, एंड ऑल्सो द फ्लावर्स कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड मैनुअली। तो जैसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या कराते हैं कि मेल पार्ट्स को हम निकाल लेते हैं, दैट इज़ ईमैस्कुलेशन, एंड देन वी डस्ट द डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द डिज़ायर्ड प्लांट, इजंट इट। तो कहने का मतलब है कि सारी इजी फिजिबिलिटीज थी, इसकी वजह से मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स. You can see here the 7 pair of contrasting characters selected by Mendel for his experiment. Suppose a character is height, ठीक है, तो उसके दो ट्रेट्स हो सकते हैं, either tall or short. Seed shape, if we consider seed shape, then can be round or wrinkled. Seed color can be yellow or green. Seed coat green or white. Seed coat color, okay. Then pod shape inflated, full, or can be constricted, flat. Pod color can be green or yellow. Then the flower position can be axial or terminal. Okay, so these were the 7 characters, 7 pairs of characters of contrasting to each other, which were selected by Mendel. ठीक है, तो हर एग्जाम्पल में, हर एक कैरेक्टर में हम देख सकते हैं कि दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं एक ही कैरेक्टर्स के. ओके, now finally let's see that on what all experiments or what all generalization or what all hypothesis Mendel gave through his experiments on the pea plant, Pisum sativum. So basically the concept which he introduced via crossing of these pea plants was the inheritance of a gene. ठीक है, बेसिकली जब मेंडल ने स्टार्ट किया था जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स, तो उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था जीन्स के बारे में. ही वॉज अनअवेयर ऑफ द टर्म जीन, ही वॉज अनअवेयर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ DNA, ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, एनीथिंग. ओके, वो बाहर से बस कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करके जो है उसको, और एक्सीडेंटली वो एक्सपेरिमेंट्स करते गए, और फिर उनको ये पता चलता गया कि ये हर जनरेशन में ऐसे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं. फिर उस चेंजेस की रीज़न क्या हो सकती है, उन्होंने उसको हाइपोथेसिस दिया. हाइपोथेसिस क्या होता है कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम फिर कॉन्क्लूज रिज़ल्ट डायरेक्ट नहीं बताते, हम उसको मतलब वी जस्ट गिव अ स्टेटमेंट कि इट कैन बी दिस ऑल्सो, इट कैन बी दैट ऑल्सो. फिर उस हाइपोथेसिस को हमको प्रूव करना पड़ता है, एंड इफ़ इट इज़ प्रूवन देन ओनली इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एनी लॉ और इनटू एनी रूल. ओके, द फाइनल रिजल्ट इज़ द लॉ और द रूल, अंडरस्टूड. तो व्हाट इट इज़, ही वॉज स्मूथली कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन द पी प्लांट, और हर जनरेशन की जो रीडिंग्स आते थे, ठीक है, लाइक यू मस्ट बी वर्किंग इन योर
laboratories, okay, like in physics, consider physics. So whatever readings you are getting at each experiment, you just note down it, isn't it? You just make a table, or you just through via a graph or via a table, you just keep on noting the readings whatever you get, isn't it? So same case, same strategy was applied by Mendel also while he was conducting the experiments. Okay. So accordingly, what Mendel did was he carried out a monohybrid क्रॉस. ठीक है. सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हुआ? अब हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग फॉर्म्स का कॉम्बिनेशन, इजंट इट? दो अलग चीज़ें हैं, उनका कॉम्बिनेशन जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं. जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि we are the hybrid of our parents, isn't it? Because some sets of gene, half set of gene is from mother and half is from father. So we are the recombined product of our father and mother, isn't it? So we are what? We are hybrid, isn't it? So similarly, when we talk about the term monohybrid, mono का मतलब क्या होता है? mono का मतलब होता है one, okay, single. तो अगर हम कोई ऐसा क्रॉस करा रहे हैं टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम, ठीक है, किसी एक कैरेक्टर को ध्यान में रखकर उसको हम स्टडी कर रहे हैं या उसका क्रॉस या एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, तो ऐसे क्रॉस को हम क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मीन्स द क्रॉस in which we are considering just one character at a time. एक समय पे हम एक कैरेक्टर को जब स्टडी करते हैं किसी भी क्रॉस में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ओके. और वो जो एक कैरेक्टर हम स्टडी कर रहे हैं उसके क्या होगा? दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगे. ओके. मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब, क्रॉस मतलब ऑब्वियसली कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, पहली बात. दूसरी बात क्या है? मोनोहाइब्रिड है, इसका मोनो है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक कैरेक्टर को हम स्टडी कर रहे हैं और हमको पता है कि हाफ सेट ऑफ जीन इज़ फ्रॉम मदर एंड हाफ इज़ फ्रॉम द फादर, इजंट इट? तो हमें पता है कि एक कैरेक्टर्स के हमेशा, बेसिकली नॉट हमेशा, जनरली दो फॉर्म्स होते हैं, ठीक है. वन कैरेक्टर इज हैविंग जनरली टू कैरेक्टर्स, टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कंसिडर द हाइट, इट कैन बी आइदर टॉल. इफ यू कंसिडर द हाइट ऑफ द प्लांट, इट कैन बी आइदर टॉल और इट कैन बी ड्रॉफ, इजंट इट? टॉल और ड्रॉफ, लंबा हो सकता है या छोटा हो सकता है, यही दो फॉर्म्स हो सकते हैं प्लांट्स में, इजंट इट? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब यह हुआ कि द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है. दो पेरेंट्स हैं, उनमें बाकी सारे कैरेक्टर सेम है, सिर्फ एक कैरेक्टर जो होगा वो अलग होगा दोनों में, और दोनों जो अलग कैरेक्टर्स हैं वो आपस में क्या है? एक दूसरे के अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, ठीक है. अगेन आई एम रिपीटिंग कि दो पेरेंट्स हैं, उनमें सारे कैरेक्टर्स सेम होंगे, बस एक कैरेक्टर दोनों पेरेंट में अलग होगा और वो दोनों कैरेक्टर आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगे. सपोज़ कि एक फीमेल प्लांट है जिसमें 100 कैरेक्टर्स हैं और एक मेल प्लांट है जिसमें 100 कैरेक्टर्स हैं, तो 99 कैरेक्टर्स दोनों में क्या होंगे? सेम होंगे. लेकिन जो एक कैरेक्टर है, 100th वाला जो कैरेक्टर है, वो मेल में भी अलग है और फीमेल में भी अलग है. और ये जो लास्ट वाला कैरेक्टर जो दोनों में अलग अलग है, वो आपस में क्या है? एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव फॉर्म से. अगर एक टॉल है तो एक ड्रॉप होगा, अगर एक वायलेट फ्लावर्स दे रहा है तो वो एक वाइट फ्लावर देगा, अगर एक का पोजीशन एक्सिस में हो रहा है तो दूसरे का पोजीशन टर्मिनल होगा, ठीक है. मतलब कैरेक्टर स्टडी हम एक ही कर रहे हैं लेकिन फॉर्म्स उसके कितने हैं? दो. समझ में आई बात? यू गॉट इट? So what he did was he just crossed tall and dwarf pea plants. उन्होंने एक प्योर लाइन ली टॉल प्लांट की और एक प्योर लाइन ली ड्वार्फ पी प्लांट की, ठीक है. मेंडल ही परफॉर्म्ड अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन वन प्योर टॉल प्लांट एंड वन प्योर ड्वार्फ प्लांट. अब प्योर का मतलब क्या हुआ? प्योर का मतलब क्या हुआ कि लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि
दे आर बीन सेल्फ क्रॉस्ड फॉर सेवरल जनरेशन, इसलिए उनका जो वो कैरेक्टर है, वो टॉलनेस का जो कैरेक्टर है वो लॉक हो चुका है उनके अंदर। वो इतनी बार आपस में सेल्फ पॉलिनेट हुए हैं कि उनका वो जो टॉलनेस वाला कैरेक्टर वो क्या हो गया, वो लॉक हो गया उनके अंदर। और इस वजह से क्या है, वो आने वाले कई जनरेशन्स तक अगर सेल्फ पॉलिनेट किया जाए तो क्या देंगे, टॉल ही देंगे। सिमिलरली इज़ विद द ड्वार्फ कैरेक्टर्स, कि वो ड्वार्फ कैरेक्टर के लिए फिक्स हो चुके हैं वो प्लांट्स, और वो उनको कितने भी जनरेशन सेल्फ क्रॉस कराया, सेल्फ पॉलिनेट कराया जाए, दे विल बी गिविंग ओनली ड्वार्फ प्लांट्स। तो दो अलग अलग प्लांट्स ले, एक जो प्योर टॉल है और एक जो प्योर ड्वार्फ था, ओके। और इन दोनों को क्रॉस कराया, तो ऐसे क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फिर उसके जब दोनों प्लांट्स को क्रॉस करने के बाद जो रिज़ल्ट मिला, तो रिज़ल्ट क्या है प्लांट के केस में, सीड्स, इज़न्ट इट। तो जो सीड्स मिले उनको उन्होंने कलेक्ट किया, ही कलेक्टेड दो सीड्स एंड ही ग्रू टू जनरेट फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन और फर्स्ट फीलियल जनरेशन और F1 जनरेशन। तो पहला जो ये क्रॉस हुआ टॉल और ड्वार्फ के बीच में, उसका जो भी सीड प्रोड्यूस हुआ उसको उन्होंने ग्रो किया और ये पाया कि उस जो उन दोनों प्लांट का जो पहला जनरेशन है, ठीक है, सपोज़ एक जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम, अगर एक कपल है, ठीक है, ह्यूमन कपल, मेल एंड फीमेल, तो उनकी जो फर्स्ट चाइल्ड होगी वो क्या होगी, वो उनकी पहली जनरेशन होगी ना। तो उसी तरह से इन दो प्लांट्स को जब क्रॉस कराया तो इनके जो सीड्स हुए वो पहले जनरेशन्स के सीड कहलाएंगे, ओके। सो ये पहले जनरेशन जो होता है, जो वेरी फर्स्ट जनरेशन होता है, उसको जेनेटिक्स के टर्म में हम क्या बोलते हैं, फीलियल जनरेशन। एंड सिंस इट्स फर्स्ट, सो इट इज़ नोन एज फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फीलियल, FILIAL, फीलियल जनरेशन। तो पहला जो जनरेशन होगा उसको हम बोलते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन और फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, और इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल FN1, F1 जनरेशन, अंडरस्टूड। तो F1 जनरेशन में उन्होंने पाया कि सारे के सारे प्लांट्स कैसे हुए, जितने भी सीड्स उन्होंने पाए थे उन दोनों को क्रॉस करा के, वो सारे के सारे सीड्स किस प्लांट के निकले, सारे टॉल प्लांट के निकले, ठीक है। टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कराया तो फर्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए सारे के सारे कैसे निकले, टॉल निकले, और एक भी ड्वार्फ प्लांट नहीं था, ठीक है। I'm again repeating, a tall plant was crossed with a dwarf plant, and the plants obtained in the first generation, all the plants were tall in nature and not a single was dwarf in nature, ठीक। Then similarly he carried out एक्सपेरिमेंट्स फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने हाइट को कंसिडर किया था। इसी तरह से उन्होंने सपोज़ एक प्लांट लिया जो वायलेट कलर के फ्लावर्स देते हैं, एक दिया जो एक और क्रॉस कराया उसका ऐसे प्लांट से जो वाइट कलर के फ्लावर देते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स जो है वो वायलेट कलर ही फ्लावर्स दिए, जबकि वाइट कलर का कोई नामो निशान नहीं था, ठीक है। सो ही कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट्स इन द विथ ऑल दो 7 कैरेक्टर्स लाइकवाइज। और हर जनरेशन में हर एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यही पाया कि 2 कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर ही फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा था, ठीक है, किसी भी एक का एक्सप्रेस हो रहा था और दूसरे वाले का कोई आता पता नहीं था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जो पहला जनरेशन था, जो पहला जनरेशन में जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है, उन सारे पहले जनरेशन के प्लांट्स को उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट कराया। क्या कराया, ही सेल्फ पॉलिनेटेड, उसको हम सेल्फिंग भी बोलते हैं, SELFING, सेल्फिंग, सेल्फ पॉलिनेट कराया उसको दूसरे, मतलब खुद से। सेल्फ पॉलिनेट का मतलब कि सपोज़ फर्स्ट जनरेशन में 4 प्लांट्स ऑब्टेन हुए थे, ठीक है, तो किन्हीं भी 2 प्लांट्स को उन्होंने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेट कराया, ठीक है। उसके बाद जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे वो सारे के सारे कैसे कहलाएंगे, सेकेंड जनरेशन के कहलाएंगे, इजंट इट। ऑल दोज प्लांट्स विल बी ऑफ सेकेंड जनरेशन। सो सेकेंड जनरेशन में उन्होंने पाया कि कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो ड्वार्फ थे, कुछ प्लांट ऐसे थे जो टॉल थे, और कुछ ऐसे थे जो क्या थे, कुछ प्लांट क्या थे, टॉल थे, और कुछ प्लांट क्या थे, ड्वार्फ थे, ओके।
ओके। सो पहले जनरेशन में क्या थे, सारे के सारे टॉल प्लांट्स थे, जबकि पेरेंट्स टॉल और ड्रॉफ दोनों थे। लेकिन दूसरे जनरेशन में क्या थे कि कुछ प्लांट्स ड्रॉफ थे और कुछ प्लांट्स जो है वो क्या थे, टॉल थे। ठीक है। सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, whatever experiment he conducted, that is starting from the two parents and first and second generation, he just represented his experiment in the form of a table or in the form of a more uh, organized or statistical manner. And what was that manner? Let's see this same diagram experiment with the help of a diagrammatic and cross representation. You can see here. Now this diagram is depicting the inheritance pattern in the simple language, the experiment conducted by Mendel. तो उन्होंने क्या किया था, you can just see here. He took two plants. Parental generation consisted of two plants. One was tall and the other was dwarf. You can see one is larger in size and the other one is smaller in size. Since we are using the term purely tall and purely dwarf, ठीक है, one thing also we have discussed कि at this time when Mendel was carrying out his experiment, उनको जीन के बारे में कुछ पता नहीं था, डीएनए के बारे में कुछ पता नहीं था, तो वो जीन टर्म यूज़ ही नहीं किए थे. ही डिडंट यूज़ द वर्ड जीन्स, ही रादर यूज़ द वर्ड फैक्टर. ओके, ही यूज़ द वर्ड फैक्टर इंस्टेड ऑफ जीन्स. तो उनको जीन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वो सिंपली एक्सपेरिमेंट किए एंड ही फाउंड कि पहले जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं. यू कैन सी बोथ द प्लांट्स आर, ऑल द टाइप्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूस आर टॉल इन नेचर. और जब इन्हीं टॉल प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन को इन्होंने फर्दर आपस में सेल्फ पॉलिनेट कराया या सेल्फ क्रॉस कराया, तो उन्होंने पाया कि जो नेक्स्ट जनरेशन जो F2 जनरेशन है उनका, उसमें टॉल प्लांट्स भी थे और एक ड्वार्फ प्लांट भी था. ठीक है, यानी कि पहली जनरेशन में सिर्फ कैसे थे, टॉल प्लांट्स थे, लेकिन दूसरी जनरेशन में क्या हुए, टॉल भी थे और एक ड्वार्फ भी था. यानी कि जो पेरेंटल कैरेक्टर था, पेरेंटल कैरेक्टर में क्या था कि एक टॉल था एक ड्वार्फ था. ये पेरेंटल कैरेक्टर जो ड्वार्फनेस वाला है ये F1 जनरेशन में गायब हो गया था, क्योंकि सारे के सारे कैसे प्रोड्यूस हुए थे, सारे के सारे टॉल ही प्रोड्यूस हुए थे. लेकिन ये जो पेरेंटल कैरेक्टर ड्वार्फ वाला है, दूसरा जो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस हुआ, वो भी एक्सप्रेस हुआ, लेकिन पहले जनरेशन में नहीं होके कब एक्सप्रेस हुआ, इन द F2 जनरेशन. अंडरस्टूड. सो इस एक्सपेरिमेंट से, अच्छा, वन थिंग मोर, that the letters written here capital T and small t, this I already told you that जो रिप्रेजेंटेशन होता है जीन्स का जेनेटिक्स में वो होता है इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, किसी भी कोई भी एक पर्टिकुलर जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के. अंडरस्टूड. दिस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि वन पर्टिकुलर जीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. हमारी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब डिटरमाइंड होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप के जीन से. मतलब कि एक जीन होगा जो हमारा आई कलर डिटरमाइन करेगा. देयर विल बी वन जीन इन आवर बॉडी विच विल बी डिटरमाइनिंग हेयर कलर, वन जीन फॉर डिटरमाइनिंग आवर हाइट, वन जीन फॉर डिटरमाइनिंग आवर लेफ्ट हैंडेड्स और राइट हैंडेड्स, वन जीन फॉर whether we are fair or where we are medium color or where we are dark and so on. ठीक है, मीन्स हर एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है. तो वो एक जीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं या एक कैरेक्टर को. जीन और कैरेक्टर आपस में क्या है, सिनोनिम्स है. तो हम उस एक जीन को या उस एक कैरेक्टर को एक अल्फ़ाबेट के रूप में या फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो ठीक ये बात समझ में आई कि हम कि एक जीन या एक कैरेक्टर को अल्फ़ाबेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पहले थी. दूसरी बात मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जो प्योर लाइन होते हैं, ठीक है, प्योर लाइन का मतलब क्या हुआ कि वो कैरेक्टर उनमें लॉक्ड है, फिक्स्ड है और 100% प्योर है. तो जब ऐसा कुछ होता है, ठीक है, नहीं उससे पहले एक चीज़ और कि यहाँ पर एक सपोज़ कि टॉलनेस के लिए हमने एक लेटर असाइन किया है T. ओके, टॉलनेस के लिए वी हैव असाइंड अ लेटर दैट इज़ कैपिटल T. और
ड्रॉफनेस के लिए वी हैव असाइंड अ लेटर स्मॉल टी, ठीक है। टॉल कैरेक्टर के लिए हमने कैपिटल टी असाइन किया है और स्मॉल ड्रॉफनेस के लिए, ड्रॉफ कैरेक्टर के लिए हमने स्मॉल टी असाइन किया है। अब हम दो बार टी टी और टी टी क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल जो है उसमें दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दो सेट्स ऑफ जीन होते हैं, एक पैटर्नल और एक मैटरनल। अंडरस्टूड? किसी भी एक इंडिविजुअल में एक पेयर ऑफ जीन होता है। एक पेयर ऑफ जीन का मतलब कि एक सेट फादर एक सेट मदर का। तो हम प्योर लाइन तभी कह सकते हैं जब वो दोनों जीन्स जो है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में वो एक ही तरह के हों। मतलब अगर एक कैपिटल टी है, फादर से आया है, तो दूसरा टी जो मदर से आया है, अगर वो भी कैपिटल टी है, तब हम उस इंडिविजुअल को, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए क्या बोलेंगे? प्योर है। और प्योर का हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं जेनेटिक्स में होमोजाइगस कंडीशन। अंडरस्टूड? that is in other term we can say कि कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ठीक है, ये क्या है? दिस इज़ वन जीन एंड दिस इज़ अनदर जीन। ओके, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक टी जो है वो एक जीन है और ये एक टी जो है वो दूसरा जीन है। दिस इज़ सपोज इट हैज़ बीन वी हैव गॉट दिस फ्रॉम मदर एंड दिस जीन वी हैव गॉट फ्रॉम फादर, ठीक है। और हम कैसे हैं, या प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, या ह्यूमंस जो है वो कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। ओके, डिप्लॉयड का मतलब कि हमारे पास टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, वन फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर, इज़न्ट इट? तो कैपिटल टी अगर दोनों सेम है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। दैट कंडीशन इज सेड टू बी होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो होमोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो है जीन्स के अगर सेम है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। ओके, तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये जो कैपिटल टी एक टी है वो क्या है? जीन है, ठीक। और चूँकि हर इंडिविजुअल में दो सेट्स ऑफ जीन होते हैं तो इसलिए ये लेटर दो बार रिपीट हुआ है। और चूँकि ये कैरेक्टर प्योर है इसलिए ये दोनों सेम है, कैपिटल टी और कैपिटल टी है, ठीक है। तो होमोजाइगस कंडीशन है और क्या है कि इट इज़ वन कैपिटल टी हमारा कहाँ से आया होगा? फादर की तरफ से, और वन कहाँ से आया होगा? फ्रॉम द मदर। अंडरस्टूड? तो दिस इज़ द होमोजाइगस कंडीशन। अंडरस्टूड? देन लाइकवाइज एक और अगर हम प्लांट ले जो ड्रॉफ कैरेक्टर शो कर रहा था तो उसका कॉम्पोजिशन क्या है? स्मॉल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी का मतलब वो होमोजाइगस, वो प्योर ड्रॉफ प्लांट था, ठीक है। तो दोनों प्लांट कैसे हो गए? एक था वो प्योर टॉल था, दिस वॉज प्योर टॉल प्लांट एंड दिस वॉज प्योर ड्रॉफ प्लांट। तो प्योर का मतलब क्या हो गया? होमोजाइगस। समझ में आई बात? अब इन दोनों का जब क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा? क्रॉस कराने से पहले एक चीज़ और, लेट्स रिवाइंड इट। इन रिप्रोडक्शन चैप्टर वी हैड स्टडीड कि जब भी फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है गैमीट्स में तो गैमीट्स अंडरगो मियोसिस। और मियोसिस का मतलब क्या हुआ कि हाफ सेट्स ऑफ जीन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। मीन्स गैमीट्स में सिर्फ एक ही सेट ऑफ जीन होता है ना। तो ये कैपिटल टी अगर हम इसका, ये क्या है? ये एक सेल है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब हम क्रॉस कराएंगे तो इन सेल्स का ये क्या है? जर्म सेल्स है, सेक्स सेल्स। इनमें क्या बनेगा? गैमीट्स बनेगा। तो हम गैमीट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? गैमीट्स आर रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, एंड दिस विल बी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो ये क्या हो गए? ये हो गए गैमीट्स, ठीक। अब इनका हम एक एक करके क्रॉस करेंगे। इसका क्रॉस सपोज इससे कराएंगे तो क्या कॉम्बिनेशन मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसका क्रॉस हम इससे कराएंगे तो भी क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस हम इससे कराएंगे तो भी क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी।
और इसका क्रॉस हम इससे कराएंगे तो भी मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो मेंडल ने पाया कि जब टॉल प्लांट्स को ड्वार्फ प्लांट से हम क्रॉस करा रहे थे तो पहली जनरेशन में ये क्या हुई, ये पहली जनरेशन हुई। तो इस पहली जनरेशन में सारे के सारे चारों प्लांट्स जो हमको ऑब्टेन्ड हुए थे वो सारे के सारे क्या थे, टॉल थे। ठीक है, मेंडल ने क्या किया कि ही क्रॉस टॉल प्लांट विद ड्वार्फ प्लांट एंड इन F1 जनरेशन जितने भी प्लांट्स उनको मिले वो कैसे थे, सारे के सारे टॉल प्लांट थे और ड्वार्फ कैरेक्टर का कहीं भी नामो निशान नहीं था। तो इससे उन्होंने ये इन्फरेंस निकाला, ये रिज़ल्ट निकाला कि टॉल कैरेक्टर जो एक पेरेंट का था वो ज़्यादा हैवी था। ठीक है, इट वॉज मोर एक्सप्रेसिव दैन द अदर कैरेक्टर दैट इज़ द ड्वार्फ कैरेक्टर। आई बात समझ? ठीक है, टॉल कैरेक्टर, इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल ही कंक्लूडेड दैट tall character was more expressive than the dwarf character and that is why all the plants of the F1 generation were tall in nature। और ड्वार्फ कैरेक्टर जो था वो बहुत ही लीस्ट एक्सप्रेसिव था या कह सकते हैं सप्रेसिव था, रेसेसिव था, जिसकी वजह से वो एक्सप्रेस किसी भी प्लांट में F1 जनरेशन के किसी भी प्लांट में वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। लाइक वी हैड ऑलरेडी टेकन द एग्जांपल ऑफ 2 सिबलिंग्स कि 2 सिबलिंग्स से 2 भाई बहन है या 2 भाई भाई हैं, 2 भाई बहन है। ठीक है, जो जिसमें से क्या होता है अक्सर करके एक बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर का होता है और एक क्या होता है थोड़ा सब्टल नेचर का होता है। तो डोमिनेटिंग वाले अपना सारा काम करवा लेगा लेकिन सब्टल वाला अपना काम नहीं करवा पाता है ना। तो सेम वॉज द केस विद दीज प्लांट्स। तो उन्होंने ये इन्फ्रेंस निकाला, मेंडल ही कंक्लूडेड दैट द टॉल कैरेक्टर वॉज मोर डोमिनेटिंग एंड इट passed on to the all plants of the F1 generation, but since dwarf character was recessive in nature, it was mild in nature in terms of expression, so it cannot be inherited or it cannot be transferred to the plants of the F1 generation। ठीक है, सो ये जो था यही बेसिक या कह सकते फाउंडेशन बना ऑफ इस फर्स्ट लॉ दैट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में बेसिकली क्या बोलता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस दैट इज़ अ क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 पेरेंट्स ऑफ having the homozygous characters but alternating types, all the individuals of the F1 generation are in a monohybrid cross involving a cross between one character but of alternating forms, only one form is able to express itself in F1 generation while the other form remains hidden, and the form which gets expressed is called the dominant character and the one which remains hidden is termed as the recessive character। ठीक है, तो टॉल और ड्वार्फ में से सिर्फ एक ही कैरेक्टर पहले जनरेशन में ट्रांसफ़र हुआ और दूसरा कैरेक्टर क्या हुआ, हिडन रह गया। तो जो कैरेक्टर बाहर आया, जो एक्सप्रेस हुआ है, टॉलनेस जो एक्सप्रेस हुआ है, तो वो कैसे कहलाएगा, दैट विल बी नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर। ओके, इसका मतलब टॉल कैरेक्टर क्या हो गया, इट इज़ डोमिनेंट इन नेचर, और ड्वार्फ कैरेक्टर क्या हो गया, क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन में अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाया इसलिए ड्वार्फ क्या हो गया, इट इज़ द रेसेसिव कैरेक्टर। ओके, सो दिस इज़ व्हाट मेंडल ही जस्ट थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट ही ऑब्जर्व्ड। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने ये तो इन्फ्रेंस निकाल लिया कि पहले जनरेशन में जो है सिर्फ एक ही कैरेक्टर पास ऑन हुआ। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट उनको पता चला इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास कर रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझा कि अच्छा, पेरेंट्स से जो है फर्स्ट जनरेशन के प्लांट्स में सिर्फ टॉल कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है, ड्वार्फ कैरेक्टर नहीं ट्रांसफ़र हुआ। तो ये ट्रांसफ़र वर्ड जो आया है वहीं से कॉन्सेप्ट आया इनहेरिटेंस का। सो ही कंक्लूडेड कि द वन कैरेक्टर आउट ऑफ द 2 कैरेक्टर्स of the 2 forms of a character, only one character is able to pass in first generation while or is
is inherited in the all individuals of the F1 generation, while the other character remains unsuccessful in getting inherited into the F1 generation. तो जो इनहेरिट हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट, क्योंकि वो ज़्यादा डोमिनेंट था, डोमिनेटिंग नेचर का था। और जो नहीं एक्सप्रेस कर पाया, जो नहीं इनहेरिट हो पाया, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉफ कैरेक्टर, या सॉरी रेसेसिव कैरेक्टर। अंडरस्टूड। सो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विच मेंडल परफॉर्म्ड, और इसी के बेसिस पे जो है वो मेंडल ने फर्स्ट लॉ दिया था, दैट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस। अंडरस्टूड। So we have studied up till F1 generation only. Okay, now in our next class we will be further carrying out with this F2 generation result कि कैसे दूसरे जनरेशन में ड्रॉफ कैरेक्टर भी आया। ठीक है, so this we will be discussing in our next class. Okay, till now if you are having any problem you just can let me know. Okay, thank you.